Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. I am at the Jagti township of Kashmiri Pandits at Nagrota near Jammu. Now this township was specifically made for Kashmiri Pandits who were brought from different places and different districts about 10 years ago to Jagti. Now 31 years have passed since Kashmiri Pandits migrated from the valley, most of them settled in Jammu. What is their condition today? What are their aspirations? Do they look forward to going back to Kashmir? Let's try and get a sense of that. हमारा माहौल ऐसा था 90 से पहले, अगर मुसलमान के पास कोई परेशानी होती तो हम लोग वहाँ खड़े होते थे। अगर हमें कोई परेशानी होती थी, शादियाँ होती थी, त्योहार होते थे, एक दूसरे को जो मिलते गले मिलते थे। 90-year-old Dinanath Ganju is living with his 85-year-old wife Chand Rani in the migrant township of Kashmiri Pandits at Jagti, 25 kilometers from Jammu. Their last wish is to return to Kashmir, the land where they were born and spent the best years of their lives. A decade back, the family from Anantnag were among more than 4,000 families that moved into the Jagti township, where they were allotted two-room sets which were meant to make their lives a little more comfortable. But the colony of Kashmiri Pandits presents a picture of neglect. Some of the houses are dilapidated, the walls damp, with water seeping from blocked pipes. Ganju say the family owned 2 houses in Kashmir, but none exists now. They have resigned to their fate. Kashmir se yaad pema? Wanta karo, peizan yaad, wanta karo. तो असो पानी गाना शायद नहीं यस भगवान सोचबो त्युथोस खेवन भगवान सोच खुशी अत ये कोर भगवान नहीं ये कोर नहीं इंसान ये कोर भगवान पाने. This is a bunch of Kashmiri boys who are playing volleyball behind me. They're all born and brought up in Jammu. Some of them can speak Kashmiri, though they're not so fluent. They say that they would want to go back to Kashmir in the future, provided their safety concerns are met. On January 19, Kashmiri Pandits are marking the 31st anniversary of their migration from the Kashmir Valley. Close to 3 lakh Kashmiri Pandits fled for their lives to Jammu and other places at the height of militancy in the Kashmir Valley in early 90s. For the next generation of Kashmiri Pandits, the idea of going back to Kashmir evokes mixed feelings of joy and fear. को मन करता है कभी कश्मीर जाने का? हाँ, होते थे उधर बहुत अच्छी जगह है घूमने के लिए, उधर बहुत मज़ा आता था। ये सब अपने सारे कश्मीरी बरादरी होती थी वहाँ पे और वही सब अच्छे से कल्चर में रहते थे। फिर अलग हो गए सब आगे। तो क्या मिस हो गया? कल्चर, जुबान? हाँ, यही सब कश्मीरी लैंग्वेज हमारी कल्चर भी मिस हो गया ये सब। और अलग हो गए सब कश्मीरी, हम आधे इधर उधर अलग कर दिया सबको। तो अगर मौका मिले वापस जाने की बात करते तो आप जाओगे? हाँ, जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। उधर पे जाने का मतलब सब कश्मीरी उधर जाना चाहते हैं, उधर जहाँ पे रहते थे पहले, जहाँ पे उनकी प्लेस है उधर पे तो जाना चाहेंगे सारे लोग। अगर मौका मिला तो आप जाओगे? हाँ, ज़रूर जाएंगे। आपको लगता है अपरूट हो गया मतलब कश्मीरी पंडित वहाँ से यहाँ आकर यहाँ पे अब इस टाउनशिप में आगे कोई फ्यूचर का पता नहीं है? कुछ पता नहीं है कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। काट क्लास में The issue of return of Kashmiri Pandits has always been marred with politics, but some among the community are making new beginnings. Sunil Pandita contested and won as an independent candidate in the Panchayat elections from a segment in his hometown of Kupwara in North Kashmir. He lives at Jagti, but he says his heart is always in Kashmir. मेरा जन्म भी उसी कश्मीर से है कि मैं चाहता हूँ मैं मरूँ भी उसी जगह पर, क्योंकि वो मेरी मातृवतन है, मेरी जन्मभूमि है। मैंने इसलिए वहाँ पर इलेक्शन लड़ा था कि ताकि मैं अपने भाइयों की सेवा कर सकता हूँ, अपने लोगों की सेवा कर सकता हूँ, अपने जो पड़ोसी है उनकी सेवा कर सकता हूँ। ये मेरा मेन मकसद था वहाँ पर इलेक्शन लड़ने का।
और मैंने जो है किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं लड़ा, मैंने इंडिपेंडेंट लड़ा है। आपने जीता, मैंने जीता, एकदम मैंने जीता। तो अब आगे क्या प्लान? आगे मेरा ये प्लान है कि लोगों को सेवा करनी, लोगों की खिदमत करनी वहाँ पर, क्योंकि मेरा ये मानना है एक इंसानियत, ना हिंदू ना मुसलमान ना सिख ना ईसाई, एक इंसान जब माँ से जन्म लेता है उसको ये पता नहीं होता कि मैं किस धर्म से हूँ, फिर उसको हम लोग ही सिखाते हैं कि ये मुसलमान है, हिंदू है, सिख है, ईसाई। मैं इंसान हूँ, इंसान की औलाद ही रहूँगा, इंसानियत की तरह ही अपना कर्तव्य करूँगा, जो मेरा मतलब इंसानियत का जो फ़र्ज़ है। अब आप कहोगे मुझे निकालने की बात, हाँ, कश्मीरी पंडित को जो निकालने की बात, छोटा सा मैं एक इसमें जो है एक आपको एक मतलब एक बात बताऊं, 90 से लेकर क्या हुआ, कुछ चेंज हुआ है? कोई भी चीज़ मुझे बता दे, वर्ल्ड का मुझे कोई आदमी बताए कोई चेंज हुआ? हाँ, एक ही चीज़ हुआ, एक हिंदुस्तान कांग्रेस मुक्त हुआ, उसके बगैर और कुछ भी नहीं हुआ। हम लोग वहीं के वहीं हैं। अगर वाकई में हिंदुस्तान को दर्द थी कश्मीरी पंडितों की, मुझे बताइए सबसे पहले गन आया कहाँ से, इतना हथियार आया कहाँ से? हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? लेकिन अब जो हम इसको जो है एक दूसरे को जो घुमा रहे हैं कि उसका ये है, इसका ये, वो भी मुसलमान है जो मुझे आज के डेट में भी अपने हिंदू भाइयों से ज़्यादा प्यार करते हैं, वो भी हिंदू हैं जो मुझे हद से ज़्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। मैं शुरू से जो है एंटी करप्शन मूवमेंट के साथ ही जुड़ा पड़ा हूँ। अच्छा एक चीज़ बताइए, आप जम्मू में रहते हैं, जगती में रहते हैं, आपकी फैमिली यहाँ है, वहाँ पे आप लोगों के इश्यूज़ कैसे सॉल्व करेंगे? फिर तो आपको वहाँ जाना पड़ेगा। मैं जाता रहता हूँ, मेरे प्राण वहीं होते हैं, मैं जब रात को सोता भी हूँ, मेरे सपने में भी मैं वहीं रहता हूँ, क्योंकि मेरा घर है, मेरा गाँव है, वो मैं वहीं पर जो है रहना चाहता हूँ आज के डेट में भी। देखिए, अगर मैं वहाँ से निकल गया, ये मैं मानता हूँ ड्यू टू दिस द बैड एंड करप्ट पॉलिटिक्स ऑफ आवर ओन कंट्री, इसका जिम्मेदार मेरी गवर्नमेंट है, इसका जिम्मेदार मेरा देश है, क्योंकि जिस देश ने ये नहीं देखा अगर ये वहाँ पर माइनॉरिटी में है, इसके साथ क्या मुझे किस हिसाब से मुझे चलना है, कैसे मुझे जो है इसको रखना है वहाँ पर। Even as security concerns dominate, there are those who want to go to Kashmir if they are helped to make a new beginning there. Ashwani Mantu is among the 45 Kashmiri Pandits who are protesting in Jammu for over 100 days, demanding the fulfillment of a government promise of jobs in return of their going back to Kashmir. He has applied for a government job under a scheme 10 years back and is still waiting for an employment. सरकार की नीति है कश्मीरी पंडित को कश्मीर बसा दिया जाएगा, मगर ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब कश्मीरी पंडित 45 फैमिलियाँ खुद बोल रही है कश्मीर जाने के लिए, अपने भाइयों और बहनों के साथ रहना चाहते हैं, 45 कैंडिडेट नहीं है, ये 45 फैमिलियाँ हैं जिनके साथ इनजस्टिस हुआ है, जो मेरिटोरियस है, इन्होंने ऐसी कैंडिडेट को लगा दिया। ये क्या कहेंगे इसको, मेरिटोरियस कैंडिडेट को इन्होंने रोड पर छोड़ दिया और एब्सेंट कैंडिडेट 8 पॉइंट 10 पॉइंट 15 पॉइंट वाले को इन्होंने लगा दिए। इसको क्या कहेंगे लैंग्वेज में? भ्रष्टाचार, सीधे सीधे भ्रष्टाचार। More than 3 decades after they left their homes in Kashmir, there is no roadmap for Pandits to return. Their long wait continues. In Jagti, Zafar Iqbal.